Hello students. In the last video we have discussed some other ratios of trigonometry, and in that we have seen little different ratios. Now today onwards I am going to start, in this video onwards I am going to start the examples regarding to the ratios. Now you will know about the definitions of the ratios. Now you will learn about the little different types of ratios. Now I am going to start the example. Look this example. If you read this properly, then you will understand. If tan A is equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A. If tan A is equal to 4/3 means अगर tan A की वैल्यू 4/3 दी है तो बाकी sin A, cos A, cot A, sec A, cosec A इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, सिंपल एग्जाम्पल होते हैं. हाउ वी कैन सॉल्व इट? लिसन हियर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस एग्जाम्पल. Listen and try to understand. Okay, first of all, our convenience purpose, you know that very well. Listen, whatever given things I am going to mention over here, then we will start the example. If you will see carefully, simply nothing but what is given. Tan A is equal to 4/3. Solution given. Tan A is equal to 4/3. What is given? Tan A is equal to 4/3. Okay, tan A is equal to 4/3. Now look here, as I told you, trigonometric ratios are always considered with the acute angle. Trigonometric ratios are, ध्यान से सुनो जो भी बोल रहा हूँ, वेरी सिंपल एग्जाम्पल है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सिंपल है. ओके, tan ratio or any type of ratio, sin ratio, cos ratio, cot ratio, then sec ratio, cosec ratio, all ratios are written by using the acute angles of the right angle triangle. Those are not written by using the absolute right angle. Are you getting? Then now look here, here angle is also given to us, tan A. This A shows that angle A we have to consider, angle A, and we have to write the remaining ratios. But while writing remaining ratios, look here, you will come to know that first of all we have to draw a right angle triangle. In that, angle A is badly needed. You can write here triangle ABC. Here it is not mentioned in the example, in the question it is not mentioned. Triangle ABC you have to take. Only simply angle A is given. You can take angle ABC, but angle A is badly needed. AXY, APR, ऐसा कौन सा भी एंगल तुम ले सकते हो, ट्रायंगल ले सकते हो. ट्रायंगल में एंगल ए होना ज़रूरी है. ओके, तो हम इधर कंसिडर करेंगे एज रेगुलर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी कन्फ्यूजन. व्हाट विल कंसिडर? लेट अस कंसिडर triangle ABC. Let us consider triangle ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री. इधर ट्रायंगल नहीं दिया है तो हमने कंसिडर कर लिया, तुम कौन सा भी कंसिडर कर सकते हो, ओनली एंगल ए उसमें होना चाहिए. ओके, लेट अस कंसिडर एंगल ABC इन विच एंगल B is equal to 90 डिग्री. फॉर आवर बेटर कन्वीनियंस आई विल ड्रॉ हियर फिगर ऑफ एंगल triangle ABC in which angle A is there. Suppose this is a triangle ABC, right angle triangle ABC. Here angle B is equal to 90 degree. Then angle A will be here, angle C will be here. You can write ABC in this way also, no problem. Okay, got idea? Look what I did. First of all, I have considered whatever given things are there. Then I have considered triangle ABC. Then now look here. Then what is given? Tan A. Tan A. We will write by using the definition of the tan in this triangle. We will write the ratio. What I am going to say, look here, we will write the ratio of tan. We will write the ratio of tan by using angle A with the help of this triangle ABC. Okay, we are going to write the ratio. तो बहुत सारे अभी सोचेंगे रेशियो तो ऑलरेडी दिया है 4/3, तो रेशियो लिखने की जरूरत क्या है. ओके, वी विल राइट साइड रेशियो. This ratio is given in case of their measures, in case of their measurements. Okay, तो tan A का रेशियो क्या होगा? देखो ये एंगल A है, इधर दिख रहा है क्या? देखो एंगल A. ओके, एंगल A. What is the definition of tan? That is very important. When we are going to solve these type of examples, we must know the definition of tan
or remaining definitions also. Without definitions we are unable to solve this example. tan की definition क्या है? Opposite side divided by adjacent side. Opposite side divided by adjacent side. What is the opposite side? Look here, a angle A which is opposite side, सामने की side BC, this is known as the opposite, and closer side AB. Then what is the ratio? BC divided by AB. BC divided by AB. ये BC divided by AB कैसे आ गया? ये BC कौन है समझने के लिए लिख रहा हूं, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, ओके, डिवाइडेड बाय ये कौन है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड. डू यू अंडरस्टैंड? तो tan A का ये रेशो होता है, इसके वजह से हमने BC अपॉन AB लिखा. तो हमें tan A का रेशो मिला अभी, tan A इज इक्वल टू BC अपॉन AB is equal to 4 upon 3. Got idea? How I have written 4 upon 3? Because already 4 upon 3 is given. tan A is equal to, तो tan A का रेशो हमने by using the फिगर ये लिखा और ये दिया हुआ रेशो. ओके, अभी इधर देखो, नेक्स्ट में कंटिन्यू करता हूँ. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. BC मीन्स व्हाट? अपोजिट साइड. AB मीन्स व्हाट? एडजेसेंट साइड. नाउ the value those who are corresponding to the BC and AB, those value we have to consider their own value. मीन्स BC न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में इधर क्या है 4, तो 4 कंसिडर करना है BC की वैल्यू और 3 कंसिडर करना है AB की वैल्यू. समझ में आ रहा है? लेकिन डायरेक्ट वैल्यू हम कंसिडर कर नहीं सकते, ओके, क्योंकि ये रेशो है, रेशो में डायरेक्ट वैल्यू हम कंसिडर कर नहीं सकते, तो इधर एक कांस्टेंट हमें कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, क्या कांस्टेंट हम कंसिडर करते हैं? जनरली इस टाइप के एग्जाम्पल में कांस्टेंट इज कंसिडर्ड इज K. व्हाट इज कंसिडर्ड? K. तो देखो अभी BC की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 4K एंड AB इज इक्वल टू 3K. ऐसा लिखना है, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ. ओके, ये K लिखना ही लिखना है, कंपलसरी लिखना है, क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है, कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है. ओके, और वो कांस्टेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद ओरिजिनल वैल्यूज हमें कंसिडर करके ऐसे लिखनी होती है 4K एंड 3K. अगर इधर 5 डिवाइड बाय 6 है तो कैसे लिखेंगे 5K एंड 6K. ये K कंसिडर करना ही है कांस्टेंट. ओके, अभी इधर देखो, BC की वैल्यू मिल गई, AB की वैल्यू मिल गई, BC की वैल्यू मिल गई, AB की वैल्यू मिल गई. हमें अभी AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. AC की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करनी है? क्योंकि साइन रेशो अगर लिखना है तो अपोजिट साइड और उसको हाइपोटेनियस लगेगा, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें मालूम नहीं है. देन वी विल फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ AC. हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC? यू नो दैट वेरी वेल. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज वी नो द टू वैल्यूज, मीन्स द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. Suppose we know the sides of a triangle, then we can find easily hypotenuse by using Pythagoras theorem. Okay, that theorem I am going to use here. Look, now in triangle ABC, by using Pythagoras theorem. इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. यूज करो ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर. हाइपोटेनियस कौन सा है देखो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. वैल्यू पुट करो अब AB और BC की, हमें मालूम है AB और BC की वैल्यू. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर यानी कि 3K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर. ओके, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर. 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर, प्लस साइन बीच में एज इट इज प्लस, 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड K का स्क्वायर K स्क्वायर. अंडरस्टूड व्हाट आई हैव रिटन? Simply I have made the squares. Then therefore AC square is equal to 9 plus 16 25K square. Okay, we want to find out here value of AC. Then what we will do? We will take the square root of both sides. Taking square root
टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट AC का स्क्वायर रूट क्या, AC स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट क्या होगा AC। 25 का स्क्वायर रूट 5, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, यानी कि AC की वैल्यू हमें मिल गई 5K। गॉट आइडिया। अभी हमें सारे रेशियोज लिखने हैं 1 बाय 1। अभी AC की वैल्यू मालूम है, AB की वैल्यू मालूम है, BC की वैल्यू मालूम है, देन बाय यूजिंग दिस फिगर वी हैव टू राइट द रिमेनिंग वैल्यूज। ऑलरेडी हमें tan की वैल्यू अभी मालूम है, तो बाकी की वैल्यू कैसे लिखनी है देखो इधर। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू। फर्स्ट वैल्यू साइन ए, डेफिनेशन इधर लिखता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, पहला एग्जाम्पल इसलिए मैं लिख रहा हूँ इधर डेफिनेशन तुम्हें लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो इधर पहले डेफिनेशन क्या होती है, साइन की अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अभी देखो इधर अपोजिट साइड कौन सी है, BC, और हाइपोटेन्यूज AC, तो रेशियो क्या बनेगा BC अपॉन AC। ओके, देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू, BC की वैल्यू हमने क्या निकाली देखो इधर 4K, और AC की वैल्यू क्या निकाली है 5K। ओके, वैल्यू पुट करो इधर, BC की वैल्यू है 4K डिवाइडेड बाय 5K, के कैंसिल हो गया तो बचा क्या 4/5, यानी कि साइन रेशियो की वैल्यू क्या आ गई देखो इधर 4/5। डू यू अंडरस्टैंड हाउ वी गॉट 4/5। अभी रिमेनिंग कौन सा है देखो कॉस। ओके, रिमेनिंग है कॉस, देन कॉस A इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, adjacent side divided by hypotenuse, therefore cos A is equal to divided by नहीं सॉरी cos A is equal to adjacent side, देखो इधर फिगर में A की adjacent side कौन सी है AB और हाइपोटेन्यूज AC, तो आंसर क्या आएगा देखो AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू, AB की वैल्यू क्या है इधर 3K, और AC की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5K। ओके, तो पुट करो 3K डिवाइडेड बाय 5K, के कैंसल 3 डिवाइडेड बाय 5। गॉट आइडिया, के कैंसल 3 डिवाइडेड बाय 5। अंडरस्टूड। ये हो गया कॉस, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan तो दिया है। अभी क्या लिखेंगे, रिमेनिंग वैल्यूज़ लिखेंगे। रिमेनिंग वैल्यूज़ हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अभी, क्योंकि अगर 3 रेशियोज़ हमें मालूम है तो बाकी के रेशियोज़ हमें ईजिली हम लिख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि साइन का उल्टा किया जाए तो क्या आता है कोसेक, कॉस का उल्टा तो सेक, और tan तो ऑलरेडी दिया है तो उसका आएगा कॉट। देन डायरेक्ट लिखेंगे, देखो अभी कॉट A इज इक्वल टू, ओके इसका उल्टा करो, tan इज इक्वल टू 4/3 है तो उसका उल्टा क्या आएगा 3/4। सेक A इज इक्वल टू, इसको डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी मालूम है सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, 3/5 है तो आंसर क्या आएगा 5/3। समझ में आ रहा है, गॉट आइडिया, अंडरस्टूड। नेक्स्ट कौन सा है कोसेक, A इज इक्वल टू, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, 5/4। अंडरस्टूड। डू यू अंडरस्टैंड कैसे वैल्यूज़ लिखनी है। इधर अगर ए ऐसे भी लिखोगे, ये मैंने लिख के दिखाया तुमको, अभी ऐसे भी लिख रहे हो तो हमारे डेफिनेशन बाहर होने के लिए मैंने नोट्स में वो लिख के दिया है वैसे ही। ओके, इधर मैंने समझने के लिए डेफिनेशन लिखी, बाद में रेशियो लिखा, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रेशियो लिखना है कॉस इज इक्वल टू रेशियो, कॉस इज इक्वल टू AB/AC, डायरेक्टली ऐसे भी वैल्यू लिखे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 3 वैल्यूज़ लिखने के बाद ऐसे डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सारे रेशियोज़ लिखने हैं और बाद में वैल्यूज़ लिखनी है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसा तुम सोचोगे वैसा करो, हमें ओनली आंसर्स निकालने हैं। गॉट आइडिया, दिस इज़ वन टाइप। ओके, इधर हमने जो रेशियो यूज़ किया
इस रेशो में 4/3 है। इस रेशो में देखो एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं दिए थी, इसकी 4 है, इसकी 5 है, ऐसे वैल्यूज़ नहीं दिए थी। इसकी हमने कंसिडर की, ए बी की वैल्यू हमने कंसिडर की 3 और बी सी की हमने कंसिडर की 4, ओके, बाय यूजिंग के। तो एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल भी इसमें पूछा जा सकता है। कैसे डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल इसमें पूछा जा सकता है, मैं अभी इधर दिखाता हूँ। देखो एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं तुम्हारे सामने इधर ले रहा हूँ, लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल है इस टाइप का, ध्यान से देखो तुम्हें समझ में आएगा। इसमें के वगैरह कुछ भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और के वगैरह कंसिडर करके उसमें फंस जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल कैसा है देखो। इन ट्राइंगल ए बी सी, आई एम गोइंग टू राइट हियर, लुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, इन triangle ABC, in triangle ABC, right angled at B, क्या एग्जाम्पल लिख रहा हूं देखो। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, देखो AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। दूसरा है BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन sin A and cos A, determine sin A and cos A। देखो इधर, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। दो ही रेशियो हमें इधर फाइंड आउट करने। ओके, अभी एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। देखो, एज यू नो दैट वी आर राइटिंग हियर, व्हाट वी आर राइटिंग, सॉल्यूशन गिवन। व्हाट इज गिवन, देखो इधर ए बी ऑलरेडी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। ओके, गॉट आइडिया, ये ऑलरेडी दिया है हमें। और ट्रायंगल भी कौन सा दिया है देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन एंड कॉस ए। इधर में हमें एंगल ए ही कंसिडर करना है। ओके, आई विल स्टार्ट, लुक हियर, I will draw here first of all figure for your convenience. A B C, ओके, ए बी की वैल्यू दी है 24 और ये दी है 7। अभी इधर देखो, इधर हमें साइन और कॉस रेशियो लिखने के लिए हाइपोटेनस की ज़रूरत है। हाइपोटेनस नहीं दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे। ओके, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे। बट हाइपोटेनियस फाइंड आउट करते वक्त एक बात ध्यान में रखो, इधर सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। पिछला जो एग्जांपल हमने देखा था उधर वो रेशो दिया था, इधर रेशो नहीं, वैल्यूज दिए हैं, मेजरमेंट दिया है पूरा। तो इधर के वगैरह कुछ भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी स्टूडेंट के कंसिडर करते हैं और फंस जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो डायरेक्ट हम इधर यूज करेंगे, देखो इधर आई विल यूज हियर बाय यूजिंग Pythagoras, by using Pythagoras theorem we get, यूज करो Pythagoras theorem। क्या है इसमें, एज यू नो दैट ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। समझ में आया? वैल्यू पुट करो ए बी और बी सी की, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। ऐड करो दोनों, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी 625 का स्क्वायर रूट क्या आता है देखो,
6 इंटू 25 का स्क्वायर आता है 5। तो ए सी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 5 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 25 सेंटीमीटर। गॉट आइडिया। 625 किसका स्क्वायर है 25 का। डू यू अंडरस्टैंड। यानी कि अभी ए बी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो बाकी क्या भी वैल्यूज लिखेंगे हम। देन साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए यानी कि क्या अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कौन सी है बी सी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन सा है ए सी, इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है हमें मालूम है, बी सी की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने निकाली अभी अभी 25, यानी कि रेशो क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाय 25। नेक्स्ट कॉस ए, कॉस एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन सी है इधर ए बी, हाइपोटेनियस कौन सा है ए सी। ओके, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने क्या निकाली 25, 24 डिवाइडेड बाय 25। इधर के का कुछ भी झंझट नहीं होता। फिर से एग्जांपल दिखाना होते तो देखो इधर इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। इधर हमने डिटरमाइन किया है साइन ए एंड कॉस ए। डू यू अंडरस्टैंड। इधर के वगैरह लेने की कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रायंगल निकालना है पाइथागोरस यूज करके तीसरी साइड, यानी कि जो भी होगी तीसरी साइड। इधर ऐसा भी हो सकता है ए सी और बी सी दे सकते हो, ए सी और ए बी भी दे सकते हैं। तो तीनों में से जो साइड बची है वो पाइथागोरस यूज करके फाइंड आउट करो और बाकी डायरेक्ट तुम ऐसे रेशो लिखो। मैंने पिछले टाइम जो पहला एग्जाम्पल देखा उसमें मैंने डेफिनेशन लिखी थी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रेशो लिखो और फाइंड आउट करो। अगर इसके आगे के ये किस लिए यूज़ करना होता है, देखो साइन कॉस और टैन के लिए रेशो लिखने ही होते हैं। ओके, और बाकी के जो 3 रेशो है उसके लिए रेशो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक बहुत बार ऐसा भी होता है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन कॉस और टैन के लिए रेशो लिखो ऐसे लिखो। बहुत बार ऐसा होता है वो साइन कॉस और टैन इसमें से कुछ भी नहीं पूछते, कुछ भी नहीं देते, वो डायरेक्ट देते हैं सेक कोसेक देते हैं। तब हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिखना है तो हमें रेशो लिख के वो आंसर लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अभी नोट्स के लिए पेज दिखा देता हूँ। देखो आज मैंने क्या शुरू किया, एग्जाम्पल शुरू किया था आज। देखो ध्यान से, इफ tan a is equal to 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। ये हमने इसी तरह सॉल्व किया के लिख के, बाद में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमें ए सी इज इक्वल टू 5k मिला और बाद में हमने बाकी के रेशियोज फाइंड आउट किए। इधर देखो साइन कॉस टैन, टैन का रेशो भी मैंने फिर से लिखा है इधर, ऑलरेडी टैन का रेशो दिया है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लास्ट पार्ट है उसका। बाकी के रेशियोज देखो, कॉट के रेशियोज भी मैंने इधर, ये देखो कॉट का रेशो इधर मैंने डायरेक्ट लिखने के बजाय ये रेशो लिख के भी दिखाया है। नोट्स में तुम ऐसे ही लिखो, ये हैबिचुअल हो जाएगा, थोड़ा सा इम्प्रेसिव होता है। ओके, गॉट आइडिया। ये सेकंड एग्जांपल जो मैंने अभी अभी तुमको दिखाया, इसमें के वगैरह कुछ भी भानगढ़ नहीं है, तो बाकी का तुम ऐसे लिखना है। ओके, आई होप सो यू गॉट आइडिया अबाउट इट। रिमेनिंग पॉइंट्स वी विल कंटिन्यू in the next video. Thank you.